بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اگر دوپہر میں سستی کی وجہ سے نیند آنے لگتی ہے اور جسم میں درد محسوس ہوتا ہے تو نیند کے بغیر سکون نہیں آتا تو دوپہر کے کھانے کے بعد کھیرا کھائیں۔ یہ جسم کو بہت ہی طاقت دے گا اور سستی بھی دور بھگائے گا۔ اگر کسی بندے کی نظر کمزور ہے تو اسے چاہیے صبح سویرے ننگے پاؤں گھاس پر چلے، 2 ہی دن میں اسے فرق محسوس ہونے لگے گا۔ تازہ نیم گرم دودھ چہرے پر مسل دینے سے چہرے کی رنگت نکھر آتی ہے۔ ٹھنڈی بلائی کا چہرے پر مساج کرنا چہرے کو داغ دھبوں سے پاک کرتا ہے۔ انگور کھانے سے پھیپھڑوں کو طاقت ملتی ہے اور بلغم بھی ساری باہر آ جاتی ہے۔ زیادہ انڈے کھانے سے سانس کی تنگی ہو جاتی ہے اور یہ دمہ بھی پیدا کرتا ہے۔ نہانے سے قبل اگر آپ کو پیشاب آ جائے تو آپ کو مثانے کی گرمی اور معدے کی کمزوری ہے۔ جو لوگ بادام کو اپنی غذا میں شامل کر لیتے ہیں وہ شوگر اور دل کے مرض میں نہیں مبتلا ہوتے۔ خالی پیٹ نہا لینے سے جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان تندرست و توانا رہتا ہے۔ آنکھوں سے پانی آنے لگے تو یہ نظر کم اور کمزور ہونے کی علامت ہے۔ چہرے کی چکناہٹ ختم کرنے کے لیے چاولوں والے پانی سے چہرہ دھو لیا کریں۔ جسم سے بدبو نہ جاتی ہو تو پانی کے اندر عرق گلاب شامل کر کے نہا لیا کرو۔ ماش کی دال کھا لیا کرو، اس سے آپ کی شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ آہستہ کھانے سے پیٹ کی بیماریاں اور گیس ختم ہو جاتی ہے اور قبض کا مسئلہ بھی نہیں ہوتا۔ الرجی کا مسئلہ ہونے لگے تو فوراً دہی کے ساتھ اندر کھیرا ڈال کر کھا لیں، یہ ہر قسم کی الرجی سے نجات مل جاتی ہے۔ رات کو زیادہ سوچنے سے نیند کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے اور لوگ نیند کم لیتے ہیں اور وہ لوگ چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ زیادہ سونے والے لوگوں کو بھوک زیادہ لگتی ہے۔ ناریل کا تیل استعمال کرنے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سستی ختم ہو جاتی ہے۔ روزانہ پیاز کھانے والے انسان کا معدہ زندگی بھر خراب نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کو کبھی دن میں نیند نہ آتی ہو وہ لوگ بہت ہی بے چین اور مزاج اور ذہین ہوتے ہیں۔ بادام کھاتے وقت اچھی طرح چبا کر بادام کو کھایا کریں اور اسے گلے میں اتاریں۔ دماغ کی نسوں کو طاقت ملتی ہے۔ جس مرد یا عورت کا پیٹ زیادہ باہر نکلا ہو وہ دل کی تکلیف میں مبتلا ہو سکتا ہے یا ہو سکتی ہے۔ بکرے کی چربی کھانے سے بال سفید نہیں ہوتے۔ درخت پھل نہ دے رہا ہو تو انار کا رس اس کی جڑوں میں ڈالتے ہی درخت پھل دینا شروع ہو جائے گا۔ روزانہ چائے زیادہ پینے سے موٹاپا بہت جلدی آ جاتا ہے اور زیادہ چائے بھوک کی کمی کا باعث بنتی ہے۔ سوتے وقت اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں تو سمجھ جائیں آپ کا دماغ کمزور ہے۔ کینسر کے مریض کو آم کا پھل استعمال کراؤ۔ خون کی کمی کے مریض کو انار کھلاؤ۔ کمزور ہڈیوں میں مبتلا افراد کے لیے کیلا کھلاؤ۔ اگر موٹا ہونا ہے تو روزانہ رات کو روٹی دودھ میں بھگو کر رکھ دیں اور نہار منہ کھا لیا کرو۔ آپ کا کمزور جسم کچھ ہی دنوں میں موٹا ہونا شروع ہو جائے گا۔ کھانا کھانے کے بعد 1.5 گھنٹے تک سونا نہیں چاہیے، اس سے پیٹ کی بیماریاں نہیں آتی۔ اگر کھانا کھا کر فوراً سو جاؤ گے تو بہت ساری بیماریاں آپ کو گھیر لیں گی اور موٹاپا بھی آپ پر حاوی ہو جائے گا۔
जोड़ों का दर्द हो या टांगों का, जैतून के तेल में एक दाना कलवंजी मिलाकर मालिश करो, 5 मिनट में आराम आ जाएगा। बदन का ढीलापन दूर करने के लिए रोज़ाना 5 अदद खजूरें खाएं। जिस्मानी कमज़ोरी ख़त्म करने के लिए खजूर का इस्तेमाल करें। जबड़ों में दर्द रहता हो तो मलट्ठी खाया करो। मलट्ठी चबाने से पहले दांत सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। आपको मैदे की तेज़ाबियत का मसला हो तो अचार खाने से परहेज़ करें। सुरख मिर्च का इस्तेमाल कम करें। काली मिर्च को ज़्यादा तरजीह दें। काली मिर्च खाने से बदन के जरासीम ख़त्म हो जाते हैं। गले में ख़राश रहती हो या गला बैठ जाता हो तो नहार मुंह काली मिर्च पीसकर पानी के साथ खा लें। अंडे प्रोटीन हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है और जिस्म की ताकत हमेशा बरकरार रहने में या रखने में मदद देता है। सौंफ और मिश्री दोनों को हम वज़न लेकर इनका पाउडर बनाकर घर में रखें। आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम के खाने के बाद इस्तेमाल करें। महीने में नज़र अकाब जैसी हो जाएगी। खाने से कबल एक सेब खा लिया करो, दिमागी कमज़ोरी दूर होगी, याददाश्त तेज़ होगी। घुटनों का दर्द का मसला हो तो अंजीर खाओ। हल्दी बूढ़ा चेहरा जवान कर देती है। अगर आप अपने छोटे कद की वजह से परेशान हैं तो दूध में खजूर डालकर मिल्क शेक बनाकर पी लेने से छोटे कद में इजाफा होता है। झुर्रियों के खात्मे के लिए रात को सोते वक्त मलाई का लेप कर लें, चेहरा साफ़ और शफाफ हो जाएगा। खाने पीने की कोई भी अशिया ज़्यादा गर्म हो तो प्लास्टिक के बर्तन में मत डालें, इससे कैंसर होने का ख़तरा है। कमज़ोर हाजमे वाले अफराद के लिए केला बहुत ही नुकसानदा है और केला बलगम पैदा करता है। ऐसे बच्चे जिनको मट्टी खाने की आदत हो, इनको केला और शहद मिलाकर खिलाएं, इनकी मट्टी खाने की आदत छूट जाएगी। जो इलायची वाला दूध पीता है, इसकी मौत कभी भी किसी लाइलाज बीमारी की वजह से नहीं होती। डोल पेट की तरह लटक रहा हो तो एक नुस्खा है, वज़न चाहे जितना मर्जी बढ़ गया हो, सिर्फ 2 चीज़ें पानी में डालकर पी लो, चर्बी और वज़न को निचोड़ कर रख देगा। 1 गिलास पानी में 2 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डालकर रात भर भिगो दें, सुबह उबाल कर छान कर पी लें। आधा लीमू का रस शामिल करें, नहार मुंह इस्तेमाल कर लो। वज़न को कम करने और पेट की चर्बी से जान छुड़ाने के लिए नहायत ही मुअस्सर है। हाथों और चेहरे के गैर ज़रूरी बालों से छुटकारा पाने के लिए हल्दी बहुत ही मुफीद है। हस्बे ज़रूरत हल्दी के पेस्ट में चंद कतरे नीम गर्म नारियल का तेल शामिल करके इस पेस्ट को जिल्द पर इस्तेमाल करें। ये जिल्द के इजाफी और गैर ज़रूरी बालों की नशोनुमा को कम कर देगा और जिल्द भी नरम मुलायम और निखरी निखरी दिखाई देगी। पीता है, इसको कभी कमर दर्द की शिकायत नहीं होती। जो लोग या जो दूध को नीम गर्म करके पीता है, इसकी हड्डियां ऊंट से भी ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं। अपने दिमाग को अगर बेहतर रखना है तो 8 घंटे की नींद ज़रूर पूरी कर लिया करें। अपनी आँखों को हमेशा बेहतर रखना चाहते हो तो सोने से पहले अपने पाँव पर तेल की मालिश ज़रूर कर लिया करो। अगर आप अपने मैदे को बेहतरीन रखना चाहते हैं तो ठंडी चीज़ों पर से परहेज़ करें। अगर आप अपने जिगर को तंदुरुस्त रखना चाहते हैं तो बाज़ारी खाने, फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर जैसी चीज़ों से इज्तनाब करें। अगर आप अपने गुर्दों को बेहतरीन रखना चाहते हैं तो सोने से पहले वॉशरूम से फ़ारिग हो लिया करें। अगर आप अपने मसाने को बेहतरीन
बेहतर रखना चाहते हैं तो कच्चा प्याज ज़्यादा इस्तेमाल किया करें। अगर सांस लेने में तकलीफ़ हो या दमे का मर्ज़ हो तो हरी मिर्च खाया करें, आराम आ जाता है। बिस्तर पर बैठकर टेक लगाकर खाना खाने से गुरेज किया करो, इससे मैदे की बीमारियां ज़्यादा हो जाती हैं। रात को बादाम के 4 दाने शहद में भिगोकर खा लिया करें, इससे अकल बढ़ती है और बढ़ने लग जाती है। जिन लोगों के पेट में दर्द रहता हो वो बच्चे के पैदा होने के बाद इनका पेट लग जाता है। जो औरतें पतली हैं और मोटा होना चाहती हैं वो ये वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें। हफ्ते में 2 बार कलेजी भून कर खाएं। नाश्ते में सेब खाएं, दिन में 3 केले खाएं और रोज़ाना किशमिश खाएं। शिमला मिर्च कैलोरीज़म बढ़ाती है, असाबी तनाव से दूर रखती है और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए भी बहुत मुफीद है। छोटी इलायची मुंह में लब पैदा करती है और मैदे की जलन को भी ख़त्म करती है। इसके अलावा सांस के लिए बहुत ही मुफीद है। खाना खाने के बाद आधा चम्मच सौंफ खाने से आँखों की रोशनी बढ़ती है। जैतून का तेल इस्तेमाल करने से दांत साफ़ हो जाते हैं, दांतों के कीड़े मर जाते हैं। खुशखुबानी दोपहर को 3 दाने खा लो, ये हाजमे के निज़ाम को तेज़ कर देती है और कब्ज़ को दूर कर देती है। बवासीर ख़त्म करती है, हड्डियों और जोड़ों के दर्द में भी बहुत मुफीद है। इस एक फल से आपके 5 मसले हल हो जाते हैं। आधा चम्मच शहद में 5-6 बूंद अजवाइन का तेल मिलाकर दिन में 3-4 बार चाटने से गले की सूजन ठीक हो जाती है। जो लोग हमेशा जवान और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं वो ये काम ज़रूर किया करें। नहाने से पहले जैतून के तेल की मालिश करें। नहार मुँह रोज़ाना 2 गिलास नीम गर्म पानी पिया करें और खाना खाने के बाद अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा चबा लिया करें। सूखे पुदीने की पट्टी बनाकर या फक्की बनाकर चाट लेने से खांसी दूर हो जाती है। अंगूर बुढ़ापे में तवानाई और तंदुरुस्ती फराहम करता है। बुढ़ापे में जो टांगें कांपती हैं इसके लिए अंगूर बहुत ही मुफीद है, ये जिस्म को ताकत देता है। पथरी होने की सूरत में गाजर और सलाद के पत्तों का रस पियो, इससे बहुत फ़ायदा होता है और अंगूर खाने से भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।